So dear student, let's start solving one more illustration to clarify our doubts and some understanding about the depreciation. So asset here I have taken computer and laptop. Can you please tell me what is the rate of depreciation for computer and laptop that we take? 40%. 40%. Very good. It's a 40%. Opening WDV. Opening WDV, we are having 500 assets, 500 lakhs asset, 180 asset. Quantity is 180. Quantity 180 and value 500 lakh. Then we have made a lot of purchases during the year. On 1st April 2020, I purchased 5 new laptop or computer for 10 lakh rupees. Full depreciation or half? Go step by full or half? Full depreciation. For June 2020, 30 lakh worth 10 asset. Full or half? Full. Full depreciation. Full. 1st March 2021, 50 lakh 20 asset. Full or half? Only last month I have used this asset. Half लगेगा. Still it is half depreciation. Okay. Then I have sold few asset. At the beginning of the year, I have sold some asset. At the end of the year, I have sold some asset. Do we provide depreciation on this too? Do we provide depreciation on asset which is sold? No. No depreciation. No depreciation on sold asset. Sir, once asset is sold, we don't compute depreciation. Whether you sell at the beginning of the year, whether you sell at end of the year, whether you use it for more than 180 days, whether you use it for less than 180 days, asset sold will be simply subtracted from the block value. That's a rule here. Okay. So let's compute the depreciation. You people have already tried. You can put your answers in my private chat box so that I'll come to know whether you are able to compute it or not. Depreciation amount on my private chat box. Okay, thank you, Norman. Thank you, Shiv. Thank you, Shweta. At least I'm getting few answers. Computers rate is 40%. Opening WDV. $500 lakh, 180 assets. Add purchased less than 180 days and 180 days or more. Here you have made 2 purchases. In this column, you have made 2 purchases. So less than 180, 50 lakh. So let us write down this first. 50 lakh, how many assets? 20. And here we have made these 2 purchases. 10 plus 30, they have given in a separate column, but we have to add it and write it. So 10 plus 30 is equal to 40. 10 lakh plus 30 lakh. So we have to write it in combine. अपने को अलग अलग नहीं entry दिखाना होता. We have to write it combine. All less than 180 days will be written here. All more than 180 days will be written here. So 40 lakh worth asset. How many total number of asset? 10 plus 5, 15. तो total ले लो. 500 plus 50 plus 40 is equal to 590. 590 lakh. Number of asset 180 plus 20 plus 15. 215.
From this, we have to just subtract less asset sold. Whatever is the value, total value, we have to consider asset sold. So 70 plus 120. 120 plus 70, 190. Total 75 assets are sold. $190, 75 assets are sold. So closing WDV as on 31st March 2021 is 400. 215 minus 75. So we are having 140 assets. We are having 140 assets worth rupees 400 lakh. So we have to compute depreciation on this value. We compute depreciation on closing value, but we provide first preference to that value which is special value. Sir, less than 180 days is the special value for us. So why less than 180 days is the special value for us? Because on this we provide full depreciation. On this we provide full depreciation. On this we do not provide the depreciation. So the special rule is for less than 180 days. So this value is known as the special value. So first we provide depreciation on the special value. So let us try that. So less depreciation. We will do that in working note. And this will be opening WDV as on 1st April 2021. Whatever it is. Working note number 1. Depreciation. First preference we always give to the less than 180 days value. First preference we have to give here less than 180 days value. Less than 180 days value is having worth of 50 lakh into 40% into 1/2 is equal to 50 lakh into 40% divided by 2 is equal to 10 lakh. And then what should I write here? Please tell me. This is how you will remember. Please tell me. What should I write here? Bolo, please. Balance if any. Balance if any. Very good. So 400 lakh minus 50 lakh into 40% is equal to 50 into 40%. 140,000. 150 150 lakh. plus 10 is equal to 150 lakh minus 400. So ये 150 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, 250 लाख की क्लोजिंग वैल्यू हो गई, 140 एसेट्स हम नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. पहला जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, प्लीज. So dear student, please remember and always remember, first we always provide preference to less than 180 days value, and then only we provide the depreciation on the balance value if any. अगर बचेगा तो निकालेंगे, नहीं तो फुल depreciation हम नहीं निकालते. पहला प्रायोरिटी हमेशा ये स्पेशल एसेट को दिया जाता है. To understand whether you have understood it or not, let us create some more variation and please try to give me answer as quick as possible. ठीक है ना. तो ये मान लेता हूं मैं कि मेरा जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है मेरा 590 लाख का है. ठीक है ना. मेरा क्लोजिंग WDV मेरा 590 लाख का है. क्वांटिटी ऑफ असेट जाने दो, खाली वैल्यू के ऊपर ध्यान दो. उसमें से मैंने अभी पकड़ लो एक 300 लाख के लिए कुछ असेट सेल किए, 300 लाख के. ओके, तो मेरा क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा 590 माइनस 300 इज इक्वल टू 290. 290 अगर आता है तो डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करोगे, फटाफट बता दो.
290 अगर आता है तो डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करोगे? डिक्टेट करो मुझे और उसके बाद बोलो आप। 50 lakh 50 का lakh. स्पेशल वैल्यू 50 लाख, ये याद रखो। हाँ यस, 50 लाख इंटू 40% 40% इंटू 2/2. into half year. इंटू 1/2 ना। तो 50 लाख का हाँ। 40% अगर निकालता हूँ डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो पहले भी 10 आया था, अभी भी 10 ही आएगा, तो बैलेंस इफ एनी, तो बैलेंस हाँ। कितना बच गया अभी? 290 में से 240 चला गया तो बैलेंस बच गया 240, और 240 का करेंगे into 40%, 40. तो 240 हाँ। का 96. 96 प्लस वो वाला 10, 96 lakh. तो टोटल डेप्रिसिएशन 106. 109 आ गया। करने आ रहा है आपको अभी ये? 106 10 सॉरी 106 106 आया, ठीक है ना। चलो आगे चलता हूं, वैल्यू और थोड़ा बढ़ा देता हूं। सर अगर ये मैंने इसका वैल्यू 590 ही कांस्टेंट रखा, बाकी सारा डेटा कांस्टेंट, ठीक है ना, खाली मैं सेलिंग प्राइस चेंज करूंगा अभी। अगर मैंने सेलिंग प्राइस 380 किया तो ये कितना आएगा? 590 माइनस 380, ये 210 आएगा। 210 का डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ जल्दी। 210 वैल्यू अगर होता तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते आप लोग? 50 का हाफ ईयर 50 लाख 50 इंटू into 40% into same इंटू 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 160. बैलेंस है कितना? 160 का 160 160 160 इंटू 40%, 64 plus 10 74. plus 10 74 74 लाख आ रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 74 लाख का डिप्रिसिएशन आ गया। सेलिंग प्राइस में और बड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस में और बड़ा कर देता हूँ। लेट अस हैव 590 हियर, 590 हियर, और मैं यहाँ पे 450 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 590 में से 450 चला गया, बच गया 140। 140 का डिप्रिसिएशन निकाल के दिखा दो प्लीज। 50 का हाफ ईयरली होगा 40. 50 लाख के साथ तो वही होना है, 50 लाख इंटू 40% इंटू 1/2 प्लस 50 इंटू 40% डिवाइड 90 90 into 90 40%. इंटू 40%, 36 lakh. 46 lakh. तो ये आ रहा है 46 लाख। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, आगे करते हैं। इसको 590 रख देता हूं, इसको 520 कर देता हूं। 590 में से 520 चला गया तो आ जाता है 70। 70 का डिप्रिसिएशन निकाल के बताओ। 50 का तो 50 वही lakh. होता है 50 लाख और 20 40%, और 40%. बैलेंस 20 का 40% फुल ईयर। बैलेंस 20 का 40% फुल ईयर करेंगे, तो 20 का 40% अगर करेंगे तो 8 आता है, 18 lakhs. 80. तो ये 18 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। आगे और बड़ा कर देता हूं मैं, 590 इंटू 540 कर देता, 540 कर देता हूं मैं। 590 का 540 चला गया तो बैलेंस 50 lakh. 50 लाख का कैसे निकाल? डॉट 50 आया अभी, डॉट 50। ये 50 डॉट में बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डॉट 50 ये इससे मैच हो रहा है मेरा, ठीक है। हाँ बोलो। Same treatment 50 के साथ 10 lakh. तो सेम ट्रीटमेंट ही जाएगा ना। बैलेंस तो आप बोलोगे सर तो बैलेंस कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो मैंने बोला बैलेंस बचा नहीं तो निकालना ही नहीं है ना, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है 50 लाख इंटू 40% इंटू 1/2, तो इसका तो 10 ही आना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। हाँ Yes. इसका आ गया 40 लाख। अच्छा अभी मैं इसको कर रहा हूं 590, और 590 में से मैं इसको अगर मैं 580 कर दे, 580 नहीं, चलो कंफ्यूज हो जाओगे, 570 कर देता हूं तो इसको अभी कितना बच गया मेरे पास? 20 20 lakh का 40% into 1/2.
तो 20 लाख का इंटू 40% इंटू 1/2. तो व्हाट डिड यू लर्न हियर सर? 20 का 40% डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे हम तो ये 4 लाख आता है. 4. तो आपने नियम क्या पढ़ लिया है यहाँ पे यार, ठीक है ना? जितना लोअर सेलिंग प्राइस, जितना लोअर सेलिंग प्राइस, देखो हाँ, जितना लोअर सेलिंग प्राइस, नहीं सॉरी, ऊपर सेलिंग प्राइस ऊपर है, जितना लोअर सेलिंग प्राइस उतना हाइयर डिप्रिसिएशन, लो सेलिंग प्राइस हाई हाँ। डिप्रिसिएशन, ठीक है ना? और जैसे जैसे मैंने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया, जैसे जैसे मैंने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, द मोमेंट आई इंक्रीज द सेलिंग प्राइस माय डिप्रिसिएशन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. मेरा डिप्रिसिएशन कम होते गया, डिप्रिसिएशन कम होते गया, डिप्रिसिएशन कम होते गया. सर इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो ना सर, ये आपने किया क्या है? बाबा मुझे अल्टीमेटली बताओ, डिप्रिसिएशन हो या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो, डिप्रिसिएशन हो या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो, ये दोनों के दोनों डेबिट में होते हैं. ज्यादा डेबिट मतलब लो टैक्स. अब ये तो क्लियर है ना? मोर डेबिट मतलब लो प्रॉफिट, लो प्रॉफिट मतलब लो टैक्स ना, इतना तो क्लियर है. अकाउंट्स तो हाँ. समझो. ज्यादा डेबिट मतलब लो प्रॉफिट, लो प्रॉफिट मतलब लो टैक्स. सर ये तो नियम है. तो मैं आपको बेनिफिट डिप्रिसिएशन बोल के दूं या मैं बेनिफिट आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बोल के दूं, आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना. आपको तो ये अमाउंट कम करने से मतलब है, प्रॉफिट कम करने से मतलब है, राइट? आपका ओवरऑल प्रॉफिट कम होना चाहिए ना बिजनेस का, जहां पे आप बेनिफिट ले रहे हो. टैक्सेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं. ये डेप्रिसिएशन इज द बेनिफिशियल एंट्री ना, आपका डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स कम होता है, राइट? Yes. Higher the depreciation, lower the profit and lower the tax, which is beneficial for the entity. ये तो हमने बहुत पहले करके रखा है. तो मैं आपको क्या पूछता हाँ. हूं, अगर आपके पास इतने असेट थे, जैसे मेरा ये एग्जांपल ले लो ना, मेरे पास कितने असेट थे, टोटल कंप्यूटर्स कितने थे मेरे पास? 215 computers. I was having 215 computers. I sold 75 out of it for 190 lakh. Don't you think this is the recovery cost? Cost recovered 590 लाख में का, तो 190 लाख का तो कॉस्ट ही रिकवर हो गया मेरा डायरेक्टली असेट बेच के ही. हेलो, अरे मेरे 590 लाख में का 190 लाख तो मैंने असेट सेल करके कमा लिया ना. और जो असेट सेल करके मैंने कमा लिया, उसका मुझे ये बता दो दोस्तों कि जो असेट आप यूज ही नहीं कर रहे हो, क्या उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे? नहीं. तो ये No. 175 मैंने सोल्ड कर दिया. कब किया उससे लेना देना नहीं है ब्लॉक का. ब्लॉक बोलता है साल में कभी भी बेचो, अगर आपके क्लोजिंग WDV में वो इंक्लूड है तो ही हम उसके ऊपर डिप्रिसिएशन देंगे, नहीं तो इसको इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं देंगे. तो जितना वैल्यू तुमने रिकवर किया उतना वैल्यू वो बोलता है ब्लॉक में से माइनस करो, जितना सेलिंग प्राइस है उतना सब्ट्रैक्ट करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. बोलता है वॉट एवर इज योर सेलिंग प्राइस प्लीज सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ब्लॉक. आप सब्ट्रैक्ट कर दो. मैंने बोला ठीक है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो बचा हुआ वैल्यू है उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन करो. मुझे क्या बोलना होता है? दिस इज कॉस्ट इनकर्ड, दिस इज कॉस्ट रिकवर्ड, दिस इज कॉस्ट रिमेन्ड. एम आई राइट? कॉस्ट इनकर्ड, हाँ. मैंने टोटल एसेट कितने के लाए? 590 के लाए. कॉस्ट रिकवर्ड सेल करके कितना? 190. तो निकाल दो, बच कितना गया? 400. तो डिप्रिसिएशन तो बची हुई वैल्यू पे लगाऊंगा ना, मैं लेफ्ट ओवर पे लगाऊंगा ना. थोड़ा थॉट क्लियर करते जाओ प्लीज. अकाउंट से अलग है, देयरफॉर इट टेक्स टाइम. अकाउंट जैसा होता तो इतना टाइम ही नहीं लेता. तुमने कॉम्प्लिकेटेड चीजें अकाउंट में पढ़ के रखी है. आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग वेरी सिंपल. यू आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस इन योर माइंड, क्योंकि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, ठीक है ना? ये रेजिस्टेंस क्रिएट होना भी चाहिए. आई एम नॉट टीचिंग यू अकाउंट बाय द वे, आई एम टीचिंग यू टैक्सेशन, आई एम टीचिंग यू द लॉ. दिस इज लीगल एंड दिस इज लॉजिकल टू मी, ठीक है ना? आपका लॉजिक यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि तुमने अकाउंट्स को अंदर बिठा के रखा हुआ है. तो फॉर द मोमेंट प्लीज कीप साइलेंट your accounting brain, keep it silent, ठीक है ना? and activate only legal brain, logical brain, and you will understand everything. अब हुआ क्या, आगे जाके क्या हो गया, लास्ट वाला दिखाता हूं. मेरे पास ओपनिंग के 590 असेट थे, 570 की तो मैंने बेच ही दिए. तो मुझे 570 के ऊपर पहला डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए क्या, वो बता दो बस. $590 के असेट मैंने परचेज किए थे, उसमें के 570 बेच दिए. Should I be getting any depreciation on assets sold?
ये बोलो। No. अपना No. नियम क्या है कि तुमको डेप्रिसिएशन कब मिलता है? जब तुम असेट को क्या करते हो, यूज करते हो। किस चीज के लिए यूज करते हो? बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करते हो। सब बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब क्या होता है? मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है ना भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट। कभी तुमने मैचिंग करके वर्ड सुना है अपने? मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे थे तभी सुना होगा। तो मेरा रेवेन्यू और मेरा एक्सपेंस मैच होना चाहिए ना। जो असेट मैंने बेची दिए साल भर में, मुझे बताओ क्या उसको यूज करके मैंने कोई रेवेन्यू जनरेट किया होगा क्या? बोलो ना यार। असेट, अभी मैं ये असेट यूज कर रहा हूं, मेरे सामने ये असेट है, ये यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसको बेच दूंगा तो ये यूज ही नहीं होगा, यूज नहीं होगा तो इसको यूज करके रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा ना। एम आई कॉम्प्लिकेट? हाँ जब मैं असेट यूज करूंगा तो वो असेट यूज होके अगर मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है तो गवर्नमेंट बोलता है उस असेट का डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर लेना। जो असेट मैंने सेल आउट कर दिया है उसको मैंने बिजनेस में यूज ही नहीं किया, गवर्नमेंट बोलता है जिसको आपने यूज नहीं किया उसका हम आपको डिप्रिसिएशन नहीं देंगे। खाली चीजों का कैलकुलेशन आसान होने के लिए हमने बोला वेदर यू सेल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर और मिड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, वी डोंट केयर, क्योंकि हमें चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें चीजों को सिंप्लीफाइड करना है। देयरफॉर वी नेवर 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 प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन एनी असेट व्हिच इज सोल्ड। अकाउंट्स में आप क्या करते हो? अकाउंट्स में आप डेट ऑफ परचेज से या डेट ऑफ ओपनिंग डेट से डेट ऑफ सेल तक का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो, बट वी डोंट डू दैट, वी नेवर डू दैट। We never compute profit on sale of asset, we never compute loss on sale of asset। हम ये सब नहीं करते इनकम टैक्स में। मैंने इतनी बार आपको अलग अलग लेवल पे असेट बेच के दिखाया। डिड आई एवर टोल्ड यू टू कंप्यूट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट? इतना मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया। हैव आई एवर आस्क्ड यू कि आप इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट और लॉस निकाल के दो? बोलो। नहीं। नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, असेट का सेलिंग प्राइस अगर लो होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो आपको प्रॉफिट हुआ लेगा कि लॉस हुआ लेगा? सेलिंग प्राइस कम है ओवरऑल कॉस्ट से, सेलिंग प्राइस कम होना आपके लिए लॉस ही हुआ रहेगा ना। थैंक यू, आपके लिए लॉस हुआ रहेगा, ठीक है ना। मुझे बताओ अगर मेरा सेलिंग प्राइस अगर कम है, देखो ना मेरा अगर सेलिंग प्राइस क्या रखा मैंने, कम रखा, मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस मैंने कम रखा, तो मेरा WDV का वैल्यू ऊपर चला गया। हेलो, मेरा सेलिंग प्राइस अगर कम हो गया तो मेरा WDV का वैल्यू ऊपर चला गया, और मेरा WDV का वैल्यू ऊपर चला गया तो आई विल गेट मोर डिप्रिसिएशन और लेस डिप्रिसिएशन। इफ माय WDV वैल्यू इज हाई, मोर डिप्रिसिएशन और लेस डिप्रिसिएशन? ऑब्वियसली सर, मोर वैल्यू मोर डिप्रिसिएशन। मोर डिप्रिसिएशन मतलब मेरा पीएनएल का डेबिट बढ़ जाएगा। अरे पीएनएल का डेबिट बढ़ जाएगा ना, और पीएनएल का डेबिट बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा। तो सब कुछ लिंक है। आप खाली लॉस करके बुक करते थे, हम खाली डेप्रिसिएशन करके बुक करते हैं, इतना ही फर्क है। तुमको समझ रहा है? आप लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों बुक करते हो, हम खाली डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। हम खाली डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा करते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा समझने का ट्राई करो। ये सब लॉजिक बता रहा हूं, मैंने कंप्यूटेशन तो आपको पहले से पढ़ा के रखा है। कंप्यूटेशन एकदम सिंपल होता है, एम आई राइट? यस सर। आपने बिना लॉजिक के मुझे इतने सारे कंप्यूटेशन बता दिए, कंप्यूटेशन तो आप कर लेते हो, अभी तो मैं खाली लॉजिक समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि देखो क्या है। मेरा सेलिंग प्राइस हाई अगर होगा तो मुझे तुम अकाउंट्स में बताओ तुमको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस, क्या होता है? तुमको प्रॉफिट होता है, तुमको प्रॉफिट होता है, तुम पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखते हो, वो तुम्हारा अकाउंट्स है, अकाउंट जाने दो। मुझे बताओ मेरे यहाँ पे जब मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है तो मेरा WDV क्या होगा? हाई WDV की लो WDV? लो। मेरा WDV कम हो जाएगा, मेरा WDV कम हो जाएगा तो डिप्रिसिएशन कम आ जाएगा, डिप्रिसिएशन कम आ जाएगा। डिप्रिसिएशन कम आ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट है, यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन लिखा जाता है ये कम हो जाएगा। हाँ ये कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ।
और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मेरा टैक्स बढ़ गया। हाँ मतलब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा टैक्स भरा। मैंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट मेरे क्रेडिट पे नहीं लिखा, फिर भी मैंने ज्यादा टैक्स भरा। क्यों सर? क्योंकि आपको कम डेप्रिसिएशन मिला। कम डेप्रिसिएशन मतलब ज्यादा टैक्स। इतना तो समझ रहे हैं ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, एकदम हाँ। सिंपल है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, वेदर यू सेल एट हायर प्राइस और वेदर यू सेल एट लोअर प्राइस, वी डोंट केयर, क्योंकि हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस ही माइनस करते हैं। अगर मैं कॉस्ट प्राइस यहां से माइनस करता, अगर मैं ईच असेट का कॉस्ट प्राइस निकाल के यहां से माइनस करता, तो फिर मुझे डिप्रिसिएशन भी निकालना पड़ता, तो फिर मुझे सेल ऑन प्रॉफिट, सेल ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी निकालना पड़ता, जो मुझे यहाँ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस। तो सर मेरा सेलिंग प्राइस हाई हो, लो हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप भंगार में भी असेट को बेचोगे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम पूरे की पूरी वैल्यू के ऊपर आपको, हम वैल्यू से लेना देना रखते हैं। और ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द पॉइंट दैट आई डिड नॉट टीच यू टिल नाउ, दैट इज सेल ऑफ असेट। अभी तक मैं आपको इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है ना? आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। मैंने अभी तक आपको सेल ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, मैंने आपको खाली हिंट दिया हुआ है। और ये हिंट से हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आज एक दिन में ज्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट कंफ्यूज एंड कंफ्यूज। जितना मैंने आपको बोला उतना कर लो, और एक होमवर्क देता हूं, उतना आप होमवर्क सॉल्व कर लो प्लीज।